Revision work for first time examination. Book First Flight, First Lesson, A Letter to God. Already I have told you that which are the lessons you have to prepare for first time examination. Letter to God, Nelson Mandela, 2 stories about flying. From the diary of Annie Frank, the 100 dresses 1 and the 100 dresses 2. Already we have completed all these lessons, and the revision work is there because we have time before our offline classes. And when you come to offline, we will learn grammar portion, written work and everything. Now we have to prepare for first time examination. The system has totally changed for this year. There was no need to write the first time or second time examination in the form of school base, but it is a compulsory. You will get the question paper from board and you have to give the examination here, just like the system that was there before 2-3 years, CC pattern. And at that time also the board distributed the question papers online, and we have to take it out and conduct the examination as the board examination. The same system is there for suppose the pandemic condition will be like that. This year problem was there tabulating the marks, so the problem will not appear in the next examination. So the board decided to take a special step. Based on that step, even the board examination students also have to attend the 2 terms. स्कूल वालों पर विश्वास नहीं है बोर्ड को, और इसलिए तो टेस्ट का विशेष व्यवस्था करके उसी नंबर को बोर्ड अपने पास रखेंगे, तो उनको खुद रिजल्ट बनाने में तो आसान होगा. सो वी हैव एनफ टाइम फॉर द टेस्ट. In the next month, maybe the first time examination will take place. Before that, we have to practice all these things, not only English but also all the subjects that you want to learn. That will be board examination. The mark will be tabulated for examination work by the board. So whatever mark you will score, that will directly go to board site. So board will take the mark from the site and they will prepare the result according to their formula. Okay. They say faith can move mountains. But what should we put our faith in? This is the question in this story delicately poses. हमारे बीच में विश्वास क्या चीज़ होता है, किस्मत क्या चीज़ होता है. लेकिन विश्वास है तो हम पहाड़ को भी हिला सकते हैं, हटा सकता है. लेकिन क्या है ये देख लेते. लंजो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड. ये ज़िंदगी में पॉसिबल वाली बात नहीं, लेकिन हुआ. गॉड को कोई लेटर लिखता है क्या? नहीं. कब चिट्ठी लिखा? When his crops are ruined, जब उसका फसल खराब हो गया. Asking for 100 pesos. वहाँ के मनी के हिसाब से उन्होंने पीसोस मंगवाया. कितने मंगवाए? 100 pesos. Does Lancho's letter reach God? लंचो का लेटर गॉड तक पहुँचता ही नहीं पहुँचते. Normally we can understand that it will not reach to God. नॉर्मल केस है तो ये गॉड तक नहीं पहुँचेगा. लेकिन मज़ा की बात है ये, डस गॉड सेंड हिम द मनी. अभी तो बताने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको पैसा मिलता ही नहीं मिलता है, मिल गया. तो व्हाट ही विल बिलीव हिज लेटर रीच्ड गॉड. ये सोचेंगे तभी तो पैसा आ गया. वो ये सोचते हैं कि पैसा भी किसी ने भेजा, गॉड ने भेजा. लेसन में हमने देखा था किसने भेजा पैसा, लेकिन गॉड सेंड हिम द मनी. उसने जो डिमांड किया था पैसा भेजा. कितना भेजा गया है वो भी हमें पता है,
अभी दोबारा रिवाइज करते समय पूरे एक बार याद आ जाती। तो पर्टिकुलर वे में कुछ बताना समझाना कोई ज़रूरी नहीं है। थिंक अबाउट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, आपसे ये लेसन पढ़ने से पहले सवाल पूछेगा तो आप क्या जवाब दो। आप ये जवाब दोगे ये लेटर गॉड तक नहीं पहुंचेगा। अगर पैसा आ गया तो पैसा गॉड से नहीं आया। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। कहानी पढ़ने से पहले इसको मद्देनज़र रखते हुए पढ़ना। ओके। और वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। सस्ता पैसा भेजने का तरीका है क्या है, पोस्ट ऑफिस से भेजो। आजकल नया सिस्टम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने का सुविधा तो बहुत हो गया, वो भी एक फ़ायदा है, डेवलपमेंट है। एंड हियर इज़ व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये करना है। आज यू रिटन द इंस्ट्रक्शन, डिस्कस विथ योर टीचर इन क्लास एंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। काउंटर क्लर्क, appropriate acknowledgement, counterfoil, record, consult a dictionary if necessary। कोई ऐसा टफ लग रहे तो डिक्शनरी कंपेयर करके वर्ड का मीनिंग भी सीख लेना। यहाँ तो मनी ऑर्डर दे रखा है, एक फॉर्म है, ये फॉर्म भर के उसमें जो अमाउंट है वो अमाउंट लिख के जिसको भेजना है उसके एड्रेस में पोस्ट ऑफिस में दे दो, पैसा जमा कर दो। पोस्ट ऑफिस उसका एक अमाउंट लेता है हमसे एक्स्ट्रा, उनके प्रोसेसिंग चार्ज जो भी है। उसके बाद जिसको पहुंचाना है उसको पहुंचाए। आजकल बैंक अकाउंट है तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ का बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचेगा, वो वहाँ से और जाके ले लेंगे। ये सिस्टम भी दे रखा है। अब देखते हैं लेसन में क्या लिखा है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक वैली दिखाई देता है, वहाँ एक घर दिखाई दे रहे। इट सैट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल। एक छोटा सा पहाड़ का सबसे ऊपर है ये घर। सैट यानी सिचुएटेड, क्रस्ट यानी मुकुट कहता है, यहाँ का मतलब टॉप ऑफ ए हिल। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। उसके ऊपर से खेत की ओर देखे तो पूरा खेत और एक नदी वहाँ से निकलती है, वो भी देख सकते हैं। फसल पूरा तैयार है। dotted with the flowers, dotted with means spread out, the flowers that always promised a good harvest। तो कोई भी बता सकता है फसल अच्छी होगी अब। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज से डाउनपोर। बस बीच में एक बारिश आ जाए और एटलीस्ट ए शावर। डाउनपोर हेवी रेन को कहते हैं, शावर लाइट रेन को कहते हैं। ये दोनों में से कोई सा भी एक मिले तो ये फसल के लिए अच्छा है। कुछ फसल तैयार होते समय इस तरह के कुछ व्यवस्था है। बारिश आ जाए तो ठीक है, कभी बारिश तेज होती है, कभी तो कम हो जाते, नुकसान भी पहुंचा देते। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो को पता है अब उसका खेत में करना तो कुछ भी नहीं है, जो करना है कर चुका है। अब हल्की सी बारिश आ जाए या एक तेज बारिश आ जाए तो वो काम कर देगा। Now we are really going to get some water, woman। वो कहने लगा
ए लेडी, बारिश आने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, लेडी खाना बना रही थी रात के लिए। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, तो उसने जवाब दिया हाँ, अगर ऊपर वाला चाहें तो बारिश मिल ही जाए। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके बड़े बड़े बच्चे तो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर ओन्स वर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे छोटे घर के आसपास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू दम ऑल, सबको बुलाया, क्योंकि वहाँ से पुकारने से घर के आसपास वाले और खेत में काम करने वाले आवाज़ सुन जाते। कम फॉर डिनर, आओ। ऊपर बताया सपर बना रहे, नीचे बुलाया डिनर के लिए आ जाओ। कितना विरोधाभास। सपर रात का भोजन है, डिनर दिन का भोजन है। दिन का भोजन डिनर कहते हैं, रात का भोजन सपर कहते हैं। ये तो सपर तैयार करके डिनर के लिए बुलाया। डिनर तो मुख्य खाना होता है और इसलिए वो डिनर का नाम लिया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट as लेंगो had predicted, खाना खा रहे थे सब, जैसे लेंजो ने प्रेडिक्ट किया, भविष्यवाणी किया, फोरकास्ट किया था आज बारिश होगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बारिश होना शुरू हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट में देखा, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में देखा तो बस क्या आ रहे, बहुत तेज़ी से, हाँ, बादल आगे मूव कर रहे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, मौसम बिल्कुल मीठा, मतलब अच्छा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन इन हिज बॉडी। उसने खाने का पूरा खाया नहीं खाया बता ही नहीं रहे, आदमी बाहर निकला बारिश में भीगने के लिए, मज़ा लेने के लिए। हमको भी ऐसा लगता है ना, शुरू शुरू में बारिश आते समय भीगने का, तो ये भी किसान तो वैसे तो मस्त है, तो उनको बारिश कितना भी आ जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लाइम्ड, वापस आके वो बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये हम रेन ड्रॉप से तुलना नहीं कर सकता है। दे आर न्यू कॉइन्स, वो कॉइन है, मनी है, सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, बड़ा वाला 10 पीस के बराबर है और छोटा वाला 5 पीस के बराबर है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं ये लाइन में से, कि बड़ा ड्रॉप कितने का बताया, छोटा कितने का बताया। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent, सेंट यानी 100th पार्ट ऑफ ए डॉलर, $1 का 100th पार्ट है। और लिटिल वंस लाइट रेन आर 5 बिग ड्रॉप्स यानी तेज बारिश, लाइट वन यानी हल्की बारिश, दोनों का जो बूंद का हिसाब किताब वैल्यू में बदल के बताया। बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीस एंड द लिटिल वंस आर 5 cent पीस। पीस है ये, पैसे नहीं पढ़ना, पीस। और इस तरह से बोल के बस वो बाहर जाके वापस आ गया।